हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सुपर सेपियन बीइंग्स में। तो बिना देरी करते हुए आज मुद्दे पे आते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम अभी तक थिएटर्स तक क्यों नहीं पहुंची और हम क्या कर सकते हैं, यानी कि आप सब मेरे साथ मिलकर ऐसा क्या कर सकते हो कि ये मूवी जल्दी से जल्दी थिएटर्स तक पहुंचे और जो रिस्पेक्ट और जो लव इस मूवी को तब नहीं मिला 30 साल पहले, वो अब मिले। देखो दोस्तों, अभी तक आप से अगर कुछ को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि पिछले साल दिसंबर में मुझे पता चला कि ये मूवी ऑफिशियली रिमास्टर हो चुकी है और आप यूट्यूब पे मेरा चैनल देख सकते हो। ठीक जनवरी में मैंने वीडियो डाली थी इस मूवी की पूरी इन्फॉर्मेशन देते हुए और एंड में मैंने ट्रेलर डाला था, एचडी ट्रेलर। तो उसके बाद से बहुत कुछ हुआ, धीरे 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 करके लोगों को पता चला। लेकिन इस मूवी के बारे में जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब लोग अवेयर हुए, अच्छा ये मूवी भी आ रही है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वो दिवाली के टाइम पे हुआ। दिवाली के टाइम पे इस मूवी की हाइप देखने लायक थी और लोगों को लग रहा था अब नहीं तो कल नहीं तो परसों ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी कि रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम थिएटर्स पे लग रही है। बिल्कुल लग जानी चाहिए थी, क्योंकि दिवाली के टाइम पे जो माहौल था और दिवाली के टाइम पे जो इन्वायरमेंट था इस मूवी के लिए, वो सबसे बेस्ट था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये अगर मूवी जनवरी 2022 में रेडी थी और अब दिसंबर 2022 हो चुका है, अभी तक थिएटर्स में नहीं आई। और अगर आई भी है तो सिलेक्टिव थिएटर्स में कुछ 150 लोगों की स्क्रीनिंग होती है बस। इंडिया में 3-4 बार हो चुकी है, बाकी यूएसए में हुई है, जापान में हुई है और 1-2 जगह और हुई है इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल्स में। तो दोस्तों, जो प्रॉब्लम एक्चुअली में अभी है वही प्रॉब्लम 30 साल पहले भी हुई थी। 30 साल पहले क्या हुआ था, मेरे पास एक वीडियो सेक्शन है एक पॉडकास्ट का जिसमें राम मोहन जी के बेटे ने बताया है कि एक्चुअली ये रीज़न बताया, मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, है ना। The problem once again was actually poor distribution. For some reason, Sako-san didn't get how the Indian business, Indian film business worked. And my dad, Ramo, and he had no kind of head for business. I mean, he was not. People say that people are humble, and for me, the word humble means that someone who is consciously, thinking about I have to control my arm. But Ram Mohan was kind of just naturally like that. It never struck him that he was anything special, and it never struck him that I should do anything to market or promote myself. That was not part of his lived experience, So he was not, able to really, go and sort of talk up. So they gave the distribution initially in '93 to a local distributor, I forget the name, who released it in a few Indian cities and cinema halls, but he did not spend any effort or money to promote or market it properly. And there's reasons why distributors will sometimes do this. It's because, they have to show a loss, right? So they have to show that some of their movies did not do well, for tax reasons. And on the other hand, the ones that, again, it's pay to play, like the ones who are their friends and all that, the producer is their friend, like, Are, I know this producer and he's going to treat me really nicely if I make sure his film is promoted a lot. So they'll put all their effort and their marketing budget towards that guy's movies. And if someone's not, coming to them with sort of the little bit of extra makan on the side, they won't necessarily care about it. So, it was just an anticlimax of sheer incompetence. It didn't run for very long in theaters in Indian cities. But what happened then was that Cartoon Network acquired the television rights, Cartoon Network India. And they started showing it every Dasera Diwali season, every season, year after year after year. And this was how it became well known and almost universally recognized by an entire generation of kids growing up in India during the 1990s and 2000s as a holiday season favorite. Now everybody's seen, nobody saw it in the theaters, but everybody's seen it on TV. ऐसा क्या रीज़न है कि ये लोग इस मूवी को प्रमोट नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे उस लेवल पे? तो देखो, जब मैंने गूगल पे सर्च किया
हम पता करने की कोशिश करेंगे कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये मूवी रिमास्टर करी, तो अपने को पता चलता है कि कुछ स्पॉन्सर्स ने मिल के कलेक्टिवली इस मूवी को स्पॉन्सर किया था 30 साल पहले। वो लोग कोई प्रोफेशनल बिजनेसमैन नहीं है, कुछ नहीं है, अपनी टीम बनी थी उन लोगों की इसी चीज़ के लिए। इन्हीं लोगों के पास इस मूवी के राइट्स थे। और 2019 में राम मोहन सर का जब स्वर्गवास हुआ था, तो एक इवेंट किया था इन्होंने जापान में नहीं सॉरी मुंबई में, और तब इन्होंने ये ऐलान किया था कि हम इस मूवी को रीमास्टर करेंगे इन ऑर्डर टू ट्रिब्यूट युगो साको-सान और राम मोहन सर्स लेगेसी। ठीक है, तब इन लोगों ने क्या करना शुरू किया कि स्क्रीनिंग्स करनी शुरू करी ऑल ओवर जापान इस मूवी की। धीरे धीरे करते इनके पास कुछ अमाउंट इकट्ठा हुआ और कुछ इन्वेस्टमेंट इन्होंने खुद करी, अपने पैसा लगाया। तो लगभग इसी ऐसे समझ लो $20,000 लगा के इन्होंने 30 साल पुरानी मूवी को 4K में रिमास्टर करा। अब इनके सारे फंड्स खत्म हो चुके हैं, इसलिए ये उस लेवल का प्रमोशन नहीं कर पा रहे जिस लेवल का प्रमोशन इनको इस मूवी का करना चाहिए था। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस मूवी को हमें प्रमोट करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं, और हम ऑलरेडी कर चुके हैं और कर भी रहे हैं आगे, और आगे करते भी रहेंगे जब तक ये मूवी थिएटर्स तक नहीं पहुंचती। अब एक प्रॉब्लम और ये मूवी में है जिसके कारण ये मूवी बहुत ज्यादा सफर करेगी। क्या मतलब है इस बात का? मतलब उनके पास वो ऑडियो वाला HD प्रिंट अवेलेबल ही नहीं है जिसने इस मूवी को आइकॉनिक बनाया। यानी अरुण गोविल वाला श्री राम, अमरीश पुरी वाला रावण, वो वाला ऑडियो इनके पास है ही नहीं। तो मैंने कहा सर ये तो बड़ी बात नहीं है, इसको सिंक्रोनाइज किया जा सकता है। ऑडियो हमारे पास अवेलेबल है पुरानी मूवीज, पुराने प्रिंट का, उस ऑडियो को लेकर नई वीडियो आउटपुट जो आप लोगों के पास है उसके साथ मर्ज करके ऐड कर दो। आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी चलता है, डिफरेंट ऑडियो, एक ही वीडियो के डिफरेंट ऑडियो इनपुट्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके पास इतने फंड्स अवेलेबल नहीं है, 2 या 3 साल बाद या 1 या 2 साल बाद इसके बारे में सोचेंगे। और इस मूवी से जितना कलेक्शन होगा, इंग्लिश वाले प्रिंट से जितना कलेक्शन होगा, उसके अल्टीमेट आउटपुट पे ये डिपेंड करेगा कि अपने पास हिंदी ऑडियो आएगा भी या नहीं आएगा। तो यार ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है। क्या मतलब है इस बात का कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो इंग्लिश ऑडियो के साथ ही अगर इसे लॉन्च करेंगे थिएटर में, इंडियन थिएटर्स में, और नॉर्थ बेल्ट में ये कतई नहीं चलने वाला इंग्लिश ऑडियो के साथ। क्यों? क्योंकि लेट 90s और अर्ली 2000s के बच्चे रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, श्री अरुण गोविल जी के राम, अमरीश पुरी के रावण को देखकर ही बड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कि मैं आप मिलके क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि इस मुहिम में हम किसी ऐसे प्रोडक्शन जायंट को इन्वॉल्व करें जो कि हिंदी डब और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में इसे डब कर सके और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सके थिएटर्स में। कौन कर सकता है ये कर सकता है सोनी इंडिया ने अभी ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी आई थी, उसको डब भी किया और डिस्ट्रीब्यूट भी किया। ठीक, और वन पीस भी एनीमे है, वन पीस की भी एक मूवी आ रही है, उसको भी इन्होंने हिंदी में डब किया है शायद, और लॉन्च होगी या हो गई है इसका मुझे आइडिया नहीं है। और कौन कर सकता है ये? और ये कर सकते हैं होमबिल फिल्म्स, जिन्होंने कांतारा बनाई और यश की KGF 2 बनाई। और अगर कोई और ऐसा प्रोडक्शन हाउस भी है जो मैं मिस कर रहा हूँ तो उसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताना। और इतना आसान काम नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे यूट्यूबर्स को इस मुहिम में इन्वॉल्व करना पड़ेगा जिनकी ऑडियंस बहुत तगड़ी है, मतलब जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बहुत ज़्यादा मासेस को। धीरे करके बात आगे बढ़ेगी और लोगों को पता चलेगा, सिनेमा हॉल ओनर्स को,
और डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता चलेगा कि अपन ये मूवी देखने जाएंगे, इट विल नॉट बी अ वर्थलेस डील फॉर देम। कुछ यूट्यूबर्स ने मिलके एनिमे मूवीज इंडिया में लॉन्च भी करवाई हैं, अगर वो भी इन्वॉल्व होते हैं इस मुहिम के साथ तो भी हो सकता है बहुत कुछ। तो यार अगर आप ये मूवी थिएटर्स में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को प्लीज़ 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 शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरी रीच बढ़े और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और मैं गारंटी, मैं ये आपको यकीन देता हूँ कि मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक ये मूवी थिएटर्स में नहीं लगती। बाकी अगर आपको और मूवी से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए या और भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो उस मूवी के बारे में और चीज़ें, या आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू।